हेलो फ्रेंड्स, माय डियर माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स। सो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर चल रहा है इंडियन पॉलिटी पे। और सभी सीएससी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी एंड पीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट बहुत मायने रखता है। और वो अदर कॉम्पिटिटिव पर्सन्स जो दूसरे एसएसबी या सीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, उनके लिए भी इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो इंडियन पॉलिटी से एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। और हम इसी पे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर लेक्चर्स हमारा चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। आज इसका लास्ट लेक्चर है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल्स और सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट द लेक्चर्स। सो फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जब असेंबली इलेक्ट होके आती है, वहाँ पर वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पब्लिक के। और रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद जो भी स्टेट के लिए जो लॉ फॉर्म करना है, फ्रेम करना है, उनके लिए एक प्रोसीजर्स होता है जिसके लिए बिल पेश किया जाता है असेंबली में। अब बात यह है कि उस असेंबली में लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता है, किस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, किस लैंग्वेज में स्पोकन करना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशंस ने डिक्लेयर किया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट जो है वो हिंदी या इंग्लिश टू बी द लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। हिंदी या इंग्लिश में आप कोई भी लैंग्वेज में आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। या फिर 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें भी कई लोग बोलते हैं। जैसे डोगरी है वो डोगरी में बोलते हैं, बंगाली है बंगाली में बोलते हैं कहीं। बट ऑफिशियल जो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्स है वो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश भी मानी गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट ए मेंबर to address the House in his mother tongue. The state legislature is authorized to decide whether to continue or discontinue English as a floor language after the completion of 15 years from the commencement of the Constitution, that is from 1965. In the case of Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, and Tripura, that time limit is 25 years, and that of Arunachal Pradesh, Goa, and Mizoram, it is 40 years. So, some states for 15 years and some states for 40 years. Now, the rights of members and Advocate General. In addition to the members of a house, every minister and the Advocate General of the state, remember it, every minister and the Advocate General of the state have the right to speak and take part in the proceedings of either house or any of its committees of which he is named a member without being entitled to vote. Without being entitled to vote. There are two reasons why underlying these constitutional provisions. Number one, the ministers, a minister can participate in the proceedings of a house. Proceedings of the house means functioning of the house. When the representatives of the public are sitting in the house and the exercise of the house are functioning during the sessions of which he or she is not a member. A member, a minister can participate in the proceeding of a house of which he or she is not a member. Second point, a minister who is not a member of either house can participate in the proceedings of both the houses. So these 2 points are being the two reasons underlying these constitutional provisions for the right of members and Advocate General.
Now, the legislative procedures in state legislatures. What is the legislative procedure in state legislatures? The first procedure is to bring a bill in the assembly, that is the ordinary bills. Bills in the originating house. An ordinary bill can originate in either house of the state legislature in case of a bicameral legislature. If in those states in these states there is no bicameral legislatures, so the ordinary bill can be originated in one house, that is the legislative assembly. But if the states have bicameral house, the bills are originated in either house of the state legislatures in the case of bicameral houses. Such a bill can be introduced either by a minister or by any other members. The bills can be introduced in the assembly or council either by a minister or by another member. The bill passes through three stages in the originating house versus first reading, second reading, third reading. In three reading procedures, the bill can be passed gradually, and after the bill is passed by the originating house, it is transmitted to the second house. If those states have the bicameral houses, means legislative council, then it is passed by assembly and then transmitted to the second house, means council. Second house means council, and the second house for considerations and passage. A bill is deemed to have been passed by the state legislatures only when both the houses have agreed to it. If both the houses are not agreed to it, the bill cannot be passed, or the bill can have not been deemed to be passed. In case of a unicameral legislature, a bill passed by the legislative assembly is sent directly to the governor for his or her assent. इन केस ऑफ यूनिकैमरल, यानी जिस स्टेट में सिर्फ दो ही हाउस होते हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो हाउस को माना जाता है, यानी उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही बिल पारित होके डायरेक्टली गवर्नर के पास प्रेजेंट किया जाता है असेंट के लिए. जैसे जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करती थी, ये बाई कैमरल हाउसेस था. बाई कैमरल हाउस मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली भी था और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था. बिल जब ओरिजिनेट होता था आइदर हाउस ऑफ असेंबली लेजिस्लेचर्स में, यानी अगर बिल असेंबली में पास होता है तो उसको पास होने के बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता था काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में. वहाँ से जब उसको पारित होता था तब उसको कंसिडर किया जाता था कि अब ये बिल पास्ड है, और फिर उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता था, यानी प्रेजेंट किया जाता था गवर्नर के पास असेंट के लिए. बट जहाँ पर कहीं, यानी अगर आप गुजरात की बात करें या किसी और गोवा की बात करें या और स्टेट की बात करें जहाँ पर सिर्फ यूनिकैमरल हाउस है, यानी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस में बिल इंट्रोड्यूस होता है, वहीं से उसको हैव टू बी डीम्ड पास्ड माना जाता है और डायरेक्टली गवर्नर के पास प्रेजेंट किया जाता है असेंट के लिए. तो फर्स्ट रीडिंग में आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय द ओरिजिनेटिंग हाउस, तो सेकंड में बिल इन द सेकंड हाउस में क्या होता है, जब बिल सेकंड हाउस में पेश किया जाता है, तो सेकंड हाउस में बिल जब पेश किया जाता है, बिल पासेस थ्रू ऑल द थ्री स्टेजेस. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग. When a bill is passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council, the latter has four alternatives before it. Number one alternative, it may pass the bill as sent by the Assembly, that is without amendments. And the second, it may pass the bill
with amendments and return it to the assembly for reconsiderations. And third, alternate, it may reject the bill altogether. And the fourth is, it may not take any action and thus keep the bill pending. It may not take any action and thus keep the bill is pending. So these are the four alternatives before it passes. If the council passes the bill without amendments, or the assembly accept the amendments suggested by the council, the bill is deemed to have been passed by both the houses, and the same is sent to the governor for his or her assent. If assembly rejects the amendment suggested by the council, if assembly यानी जब असेंबली से पास होके जाता है काउंसिल में और काउंसिल सुजेस्ट करती है कि ऐसा अमेंडमेंट इसमें परिवर्तन लाना चाहिए और असेंबली उसको रिजेक्ट करती है, कोई भी परिवर्तन नहीं लाती है जो सुजेस्ट किया है काउंसिल ने, और काउंसिल रिजेक्ट करती है बिल ऑल टुगेदर और द काउंसिल डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 months, then the assembly may pass the bill again and transmit the same to the council. The bill उस असेंबली को दोबारा उसको पास करना होता है और सेम प्रोसीजर में ट्रांसमिट करना होता है काउंसिल को। अगर काउंसिल की अमेंडमेंट्स या सजेशंस ऑफ द अमेंडमेंट्स कंसीडर नहीं करता है असेंबली, तो वो बिल माना नहीं जाता है और उस बिल को दोबारा से बनाया जाता है, यानी दोबारा से उसमें परिवर्तन लाया जाता है और फिर से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और पास करने के बाद असेंबली से पास होने के बाद उसको फिर काउंसिल में पेश किया जाता है और अब जब काउंसिल उसको पास करती है तब वो बिल प्रॉपर तरीके से पास होता है। If the council rejects the bill again and passes the bill with amendments not acceptable to the assembly or does not pass the bill within 1 month, then the bill is deemed to have been passed by the both houses in the form in which it was passed by the assembly for the second time. जब सेकंड टाइम बिल पास करती है असेंबली और उसको ट्रांसमिट किया जाता है काउंसिल में और 1 महीने तक अगर उसको पारित नहीं किया जाता काउंसिल से तो भी वो बिल पास माना जाता है। फिर Therefore, the ultimate power of passing an ordinary bill is vested in the assembly. इसीलिए कि अल्टीमेट जो पावर है बिल पासिंग की वो असेंबली के पास ही होती है। At the most, the council can detain or delay the bill for a period of 4 months. 4 months to 3 months in the first instance and 1 month in the second instance. First instance में 4 to 3 months and second instance में 1 month only. Constitution does not provide for the mechanism of joint sitting of both the houses to resolve the disagreement between the two houses or a bill. जब भी मतलब कि हम दूसरे शब्दों हम कहें कि देयर इज ए प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा टू रिजॉल्व ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू और एन ऑर्डिनरी बिल, मोर ओवर when a bill which has originated in the council and was sent to the assembly it rejected by the assembly, the bill ends and becomes dead. I again repeat it कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा का सहमति नहीं बनती किसी बिल को पारित करने में, वहाँ डेडलॉक पड़ जाता है और उस सिलसिले में प्रेसिडेंट नोटिस जारी करते हैं कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस किया जाए उसको पारित करने में, जिसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है लोकसभा स्पीकर होते हैं और वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही होता है। वो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, वो डिसएग्रीमेंट को समाप्त करने के लिए जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को कॉल किया जाता है। ये जॉइंट सिटिंग जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट में होता है और ये जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस और ए बिल, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। ये मैकेनिज्म जॉइंट सिटिंग का मैकेनिज्म असेंबली और काउंसलिंग में यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन
कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्राइव नहीं किया है और ना ही प्रोवाइड किया है कि कोई भी किसी भी ऑर्डिनरी बिल के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स के बाई कैमरल लेजिस्लेटिव स्टेट्स जहां पर हैं उनमें कोई भी डिसएग्रीमेंट या डेडलॉक हो जाता है उस बिल पर, तो वहां जॉइंट सीटिंग कॉल करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट में है, जहां पर लोकसभा एंड राज्यसभा टू हाउसेस काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से काउंसिल हैज बीन गिवन मच लेसर सिग्निफिकेंस, पोजीशन एंड अथॉरिटी देन दैट ऑफ द राज्यसभा एट द सेंटर। नाउ हाउ द गवर्नर given the assent to the bill. Every bill after it is passed by the assembly or by both the houses in case of a bicameral legislature is presented to the governor for his assent. There are four alternatives before the governor. The first is when the bill is presented to the governor for his or her assent, the governor has an alternative before given the assent. The first, he may or she may give his assent to the bill. Second, he or she may withhold his or her assent bill to the governor may withhold his or her assent to the bill. Second alternate. And the third alternate is governor may return the bill for reconsideration of the houses. थर्ड अल्टरनेट, गवर्नर अगर गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं है तो बिल को वापस किया जाता है हाउसेस के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए, रिव्यू के लिए उसको दोबारा से रिकॉन्सिडर किया जाए, या फिर गवर्नर खुद से सेटिस्फाइड ना हो तो वो उस बिल को रिजर्व रख सकते हैं फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको कंसीडर करेंगे और असेंट भी देंगे। ये फोर अल्टरनेटिव गवर्नर के पास होते हैं, या तो वो असेंट देते हैं या विदहोल्ड रखते हैं या फिर रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस हाउसेस के पास भेज दिया जाता है, असेंबली के पास। असेंबली यानी जहाँ बाई कैमरल है वहाँ वैसे होता है, जहाँ यूनी कैमरल है वहाँ वैसे होता है, या फिर वो उस बिल्स को जब खुद से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रेसिडेंट के लिए उसको कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं। अगर गवर्नर असेंट देते हैं बिल को तो वो बिल एक्ट बन जाता है और उसको प्लेस्ड किया जाता है स्टैट्यूटरी बुक पे। अगर गवर्नर विदहोल्ड करते हैं अपनी असेंट बिल पर तो बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। अगर गवर्नर रिटर्न करते हैं बिल रिकॉन्सिडरेशन के लिए और अगर बिल पास्ड होके आता है बोथ द हाउसेस से फिर दोबारा अगेन विदाउट एनी अमेंडमेंट्स एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर द असेंट, तो गवर्नर मस्ट गिव हिज और हर असेंट टू द बिल। सेकेंड टाइम पास होने के बाद ये प्रोविजन नहीं है गवर्नर के पास उसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस हाउसेस के पास भेज दिया जाए। इसी तरीके से गवर्नर एंजॉय करते हैं सिर्फ अपनी सस्पेंसिव वीटो को, ना कि सुपर वीटो को। पोजीशन इज सेम एट द सेंटर लेवल आल्सो, देयर इज द प्रेसिडेंट एंड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब बिल रिजर्व किया जाता है गवर्नर द्वारा या गवर्नर द्वारा रखा जाता है रिजर्व प्रेसिडेंट के लिए, कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी बिल को कंसीडर करें प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में आइदर गिव्स his or her assent to the bill or withhold his or her assent to the bill or return the bill for reconsideration of the houses of the state legislatures। तो प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है, या तो वो असेंट दे सकते हैं या वो विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस हाउसेस के पास भेज सकते हैं या वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं हाउसेस के पास यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए। तो अगर बिल रिकॉन्सिडर होता है विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और वो बिल प्रेजेंट किया जाता है अगेन प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास आफ्टर इट इज पास्ड बाय द हाउसेस, अमेंडमेंट्स कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, विद अमेंडमेंट्स और विदाउट अमेंडमेंट्स। तो इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑब्लिगेटरी
on the part of the president to give her or his assent to such a bill or not. So these are the procedures of the ordinary bills. Now there are the exceptional bill, one that is only first introduced in the lower houses, that is the assembly, state legislature. So constitution has laid down the special procedure for the passing of a bill, that is a money bill. Money bills like same procedure in the center in the states, in the state legislatures. Money bill cannot be introduced in the council, means legislative council. It can be introduced in the legislative assembly only, and that too on the recommendations of the governor prior. Every such bill is considered to be a governor bill and can be introduced only by ministers. After a money bill is passed by the Legislative Assembly, it is transmitted to the Legislative Council for its consideration. The Legislative Council has restricted powers with regard to a money bill. ऑर्डिनरी बिल की तरह काउंसिल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है, उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है. उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें वो मान्यता नहीं रखते हैं असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो भी वो पास ही माना जाता है. एक बार वो उसी फॉर्मेलिटीज़ के लिए काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ट्रांसमिट किया जाता है. इट कैन नॉट बी रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल. It can only make recommendations and must return the bill to the Legislative Assembly within 14 days. 14 days के ज़्यादा अगर वो बिल वो रखते हैं तो वो पास ही माना जाता है. इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को 14 दिन के अंदर उस बिल को रिटर्न करना पड़ता है असेंबली के पास. लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द काउंसिल रिकमेंडेशंस. ये कंपलसरी और मैंडेटरी नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कि उनकी सजेशंस और रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाए. ये डिपेंड करता है कि असेंबली उसको कंसीडर करे या ना करे. कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी मायने नहीं रखता. इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट्स एनी रिकमेंडेशन, द बिल इज देन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म. If the Legislative Assembly does not accept any recommendations, the bill is then also deemed to have been passed by both the houses of the legislative legislatures. Then both the houses in the form originally passed by the Legislative Assembly without any change. If the Legislative Council does not return the bill to the Legislative Assembly within 14 days, then what happened? The bill is deemed to have been passed by both the houses originally passed by the Legislative Assembly. इसी तरीके से thus the Legislative Assembly has more power comparatively Legislative Council with regard to a money bill. At the most, Legislative Council can detain or delay a money bill for a period of only 14 days, not more than 14 days. Finally, when a money bill is presented to the governor, he may either give his assent, withhold his assent, or reserve the bill for reconsideration of the state legislature. Normally, governor gives his or her assent to a money bill. रिकॉन्सिडर कम ही रखते हैं, इसको कम ही रखा जाए, नॉर्मली ये असेंट मिल ही जाता है इस पर. As it is introduced in the state legislature with his prior permission. क्योंकि नॉर्मली इस पर क्यों इसको रिकॉन्सिडर या इसको विदहोल्ड क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि इसकी प्रायर रिकमेंडेशन गवर्नर से ही ली जाती है मनी बिल पेश करने के लिए. ये खुद की अपनी पावर से नहीं होता है, ये पहली परमिशन गवर्नर से ही ली जाती है स्टेट में, और कंट्री में यानी यूनियन गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में प्रायर जो रिकमेंडेशंस हैं, प्रायर परमिशन है, वो प्रेसिडेंट से ही ली जाती है. इसलिए ये बिल विदहोल्ड नहीं रह सकता और ना ही इसको रिकॉन्सिडर किया जा सकता, ना ही इसको रिटर्न किया जा सकता है. सो दैट इज वाई व्हेन ए बिल इज रिजर्व्ड फॉर रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट में आइदर गिव हिज असेंट और विद सेम प्रोसीजर, तो प्रेसिडेंट भी इसको कमी नॉर्मली इसको असेंट दे ही देते हैं.
So friends, these are the procedures of the bills that is passed in the legislative council and legislative assembly in case of bicameral procedure in the state legislatures, and when there where there is the no procedures of bicameral houses, so only one houses can be introduced and pass the bill and directly presented to the governor for the assent. So friends, the topic is over and the lecture is over. So meet with you on tomorrow with the latest lectures, that is the judiciary system of the state, how the judicial system in the state can work after the apex court. So these are the highest body of judicial system in the state. So we will discuss about it on tomorrow. So friends, please like, share, subscribe and share the channels and get informations very clarity and with clarifications, and disseminate it with your entire friends who are preparing particularly for the UPSC civil service examinations, including Public Service Commission in provincial civil service examinations. So thank you so much and Jai Hind.